Dr. Jaya, over to you. Hello. Yes, Jaya. Speak. A very good evening, all of you. Again, it's a pleasure for me to introduce Professor Rajiv Chaudhary, sir, Department of Physical Education and Dean, Students Welfare, PRSU, Raipur, Chhattisgarh. In this series of landmark, he is MPEd, MPhil, PhD, UGC NET JRF, and postgraduate diploma in yoga and meditation, yoga and naturopathy, yoga and psychotherapy. He has a great work experience as a former lecturer at UPE Gwalior MP, former principal of SSPC PE in Sardar Patel University, Gujarat. He holds so many prestigious positions in his life as former head School of Studies in Physical Education, former dean Faculty of Physical Education, head School of Studies in Law, chairman Board of Studies, and visiting professor Trier University of Applied Sciences, Germany. He was also got the prestigious award of AIIU Medalist Accolade of Excellence Sri Lanka. That's why Sir have made all of us proud of his distinguished work. So I would like to invite Professor Rajiv Chaudhary, sir, for enlightening our students and faculty on the topic self-defense techniques. Sir, please. Thank you, madam. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Okay. बहुत धन्यवाद आपको. Thank you, sir. Special guest of this program, principal of the college, each and every unit associated with this program, dear students, participants, friends, ladies and gentlemen. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to the organizers, especially to principal of the college and Dr. Priyanka Singh for inviting me to speak in front of you and to demonstrate some self-defense techniques. I am feeling great pleasure as I got this opportunity. This is my first practical session. Before this, I delivered many sessions, more than 100 sessions theoretically, but this is my experiment. I am demonstrating something in front of you practically related to self-defense techniques. It is very difficult to teach self-defense techniques online, but I will try my level best. दोनों भाषाओं का उपयोग करूंगा, हिंदी और इंग्लिश. बात करते हैं कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स की, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, 5 से 10 मिनट तक. जितनी भी आत्मरक्षा की तकनीकें हैं वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित हैं. अगर कुछ सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत है मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स. कम से कम लागत में अधिक से अधिक अर्जित करना. क्योंकि स्पेशली यदि हम एक जेंडर बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी कंपेयर, तो हम सब जानते हैं कि दिस इज अ फिजियोलॉजिकल रीजन कि मस्कुलर स्ट्रेंथ महिलाओं में कम होती है, पुरुषों में अधिक होती है. यदि महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा करनी है उस दशा में इस सिद्धांत पर आधारित हमें लाभ लेना होगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स मींस बाय अप्लाइंग योर 10 to 15%, 10 to 20% स्ट्रेंथ यू कैन टेक एडवांटेज. प्रैक्टिकली मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि ये कैसे संभव है. अगला है म्यूचुअल वेलफेयर. कई बार आपको देखने को मिलेगा कि यदि सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स में कोई पारंगत हो जाता है, इफ वन इज स्पेशलाइज्ड इन सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, देयर आर चांसेस टू मिसयूज. तो दूसरा सिद्धांत है म्यूचुअल वेलफेयर. सामाजिक हित के लिए ही इनका उपयोग करना चाहिए. कई टेक्निक्स तो बहुत ही डेंजरस है, बड़ी खतरनाक है, मे लीड टू डेथ. अगली तीसरी बात है जेंटलनेस कंट्रोल हार्डनेस. दिस इज द मेन प्रिंसिपल वी शुड कीप इन आवर माइंड. हमें अपने मस्तिष्क में हमेशा बैठा लेना चाहिए कि जेंटलनेस कंट्रोल हार्डनेस. हम इरिटेट होकर, हम अपने एंजाइटी लेवल को बढ़ाकर, हम एग्रेसिव होकर अच्छा एडवांटेज नहीं उठा सकते. कि जेंटलनेस कंट्रोल हार्डनेस, तो हमें एक जेंटल वे में सबको परफॉर्म करना है. विभिन्न मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग आत्मरक्षा के लिए किया जाता है. जूडो टेक्निक्स हो सकती हैं, ताइक्वांडो टेक्निक्स हो सकती हैं, मार्शल आर्ट की कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं, एकेडो की टेक्निक्स हो सकती हैं. बट आई विल कंसंट्रेट माय प्रेजेंटेशन ऑन ओनली वन फील्ड. केवल एक फील्ड तक केंद्रित करूंगा उसको, और वो है जूडो. थोड़ा सा जूडो के बारे में भी जान लें, स्पेशली क्योंकि यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐसा आयोजन है जो स्पेशली छात्राओं के लिए आयोजित किया जा रहा है. तो जूडो एक बहुत ही लाभकारी है.
छात्राओं के लिए आत्मरक्षा के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। आत्मरक्षा के साथ साथ एक खेल के रूप में भी गर्ल्स कैन पार्टिसिपेट एंड कैन अचीव ए डिजायरेबल लेवल। तो यहां तो केवल सेल्फ डिफेंस की बात होगी, लेकिन कुछ टेक्निक्स की बात कर लें कि किस किस प्रकार की टेक्निक्स का इसमें उपयोग किया जाता है, किस किस प्रकार की तकनीकों का इसमें उपयोग किया जाता है। जितने भी जूडो प्रोफेसर जिगारो कानो द्वारा शुरू किया गया, लेकिन भारत में वह काफी लेट आया 1929 में, तो एक ह्यूज गैप है। लेकिन फिर भी देश जूडो के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है और भी अच्छा करने की संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ केवल हम बात करेंगे आत्मरक्षा की। जूडो की टेक्निक्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं उस 3 प्रकार की टेक्निक्स होती हैं। ऑल द जूडो टेक्निक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, नागेवाजा, कतामेवाजा, आत्मेवाजा। जैपनीज टर्म्स है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। नागेवाजा मींस थ्रोइंग टेक्निक्स इन विच वन कॉन्टेस्टेंट थ्रोज अनदर कॉन्टेस्टेंट, जिसमें एक प्रतियोगी या एक आत्मरक्षा करने वाला दूसरे को थ्रो करता है, फेंकता है। फेंकना इतना आसान नहीं है, लेकिन वह सिद्धांत जिस सिद्धांत की हम बात कर चुके हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम लागत से यह किया जा सकता है। दूसरा है ग्रैपलिंग टेक्निक्स, जैसे बाज ग्रैपल करता है, ग्रैपलिंग टेक्निक्स, झपटने वाली टेक्निक्स, उसमें ग्रैपल कर सकते हैं। तीसरा है सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। जो ये तीनों वर्ग हैं, जिन तीनों वर्गों की हमने बात की, थ्रोइंग टेक्निक्स, ग्रैपलिंग टेक्निक्स और सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, इन तीनों वर्गों में से जो 2 पहले वर्ग हैं, थ्रोइंग टेक्निक्स और ग्रैपलिंग टेक्निक्स, उनमें उनका उपयोग हम कर सकते हैं प्रतियोगिता में, जो कि एक जूडो की प्रतियोगिता होती है। लेकिन जो तीसरा वर्ग है, जो थर्ड कैटेगरी है, अतामेवाजा, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, दीज आर ओनली यूज्ड फॉर सेल्फ डिफेंस पर्पसेस। क्यों? इनका केवल आत्मरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत डेंजरस है। प्रतियोगिता में इसके रिजल्ट्स बड़े भयानक हो सकते हैं, भयंकर हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है, और इंजरी भी इस प्रकार की हो सकती है जिसका उपचार किया जाना, जिसको रिकवर किया जाना, जिसका रिस्टोरेशन बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट को यहीं छोड़ते हैं, शुरू करते हैं कहानी को प्रैक्टिकली। आई सेलेक्टेड ओनली फ्यू टेक्निक्स, क्योंकि सीमित समय डॉक्टर प्रियंका सिंह द्वारा मुझे आवंटित किया गया है। इस सीमित समय में जितनी भी टेक्निक्स हम कर पाए, लेकिन केवल डेमोन्स्ट्रेशन ही नहीं, यदि आप साथ साथ नोट करना चाहें, सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं। पहला मैं पूरी टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, पूरी टेक्निक्स को डेमोन्स्ट्रेट करके उसको बाय पार्ट करेंगे, काउंट्स वाइज करेंगे कि पहले स्टेप में क्या करना चाहिए, दूसरे स्टेप में क्या करना चाहिए, तीसरे स्टेप में क्या करना चाहिए, और सो ऑन। और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे जिससे ठीक प्रकार से उस टेक्निक को हम समझ पाए। सबसे पहला है कि हर पार्ट पर से टेक्निक बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कॉलर पकड़ता है, कभी सामने से बालों को पकड़ता है, या पीछे से चोटी को पकड़ता है, या कंधे के पास से पकड़ता है, या पैरों को पकड़ता है, या पीछे से वेस्ट को एनसर्कल करता है, प्रत्येक स्थान से टेक्निक स्थान के लिए टेक्निक बनाई गई है, प्रत्येक पोजीशन की टेक्निक बनाई गई है। शुरू करते हैं टेक्निक नंबर 1 से। पहले बेसिक टेक्निक्स की बात करेंगे। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक टेक्निक। बेसिक टेक्निक कौन सी है? मैं पार्टनर की सहायता से समझना ही आसान होगा, उसके बिना हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप ध्यान से देखते रहिएगा। टेक्निक की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति विशेष, थोड़ा सा अगर कोई हाथ पकड़ता है तो क्या करें? मान लीजिए हाथ पकड़ने की अलग अलग स्थिति हो सकती है कि सेम साइड का हैंड भी पकड़ा जा सकता है और अपोजिट हैंड भी पकड़ा जा सकता है, या कोई प्रतियोगी, कोई आपका जो दूसरा कॉन्टेस्टेंट है जो कि जिससे कि आत्मरक्षा करना चाहते हैं, आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है, आपके हाथ को ताकत से दोनों हाथों से पकड़ लेता है, तो उसको हाथ को आसानी से कैसे छुड़वाएं, कि क्या तरीका है, ये ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके सामने मेरा प्रतिद्वंदी है, बहुत स्ट्रांग है, कमजोर नहीं है। अब मैंने इसको निर्देशित किया कि मेरे हाथ को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैं छुड़वाने का प्रयास कर रहा हूं, एक सामान्य विधि से मैं छुड़वाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन सामान्य विधि से मैं छुड़वाने में असमर्थ हूं। देखिएगा, अब बात करते हैं टेक्निक की। वही पहला सिद्धांत, जिस सिद्धांत की हम बात कर चुके हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम लागत में अधिक से अधिक अर्जित करना।
मैं अपनी केवल 5% स्ट्रेंथ में अपने हाथ को आसानी से छुड़वा लूंगा। आपको लगेगा कि ये कैसे संभव है? देखिएगा, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब मैं बिना टेक्निक को हाथ से छुड़वाने, छोड़ना नहीं है आपको, पूरी ताकत से जकड़ लेना, नहीं छोड़ रहा। अब देखिएगा, बिल्कुल जेंटलनेस कंट्रोल हार्डनेस, जेंटल वे में, बाय अप्लाइंग माय मिनिमम स्ट्रेंथ आई एम। देखिए कुछ नहीं, क्या करना है, सब कुछ लीवर पर डिपेंड करता है। एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाना है, मींस पावर आर्म को बढ़ाना है, रेसिस्टेंस आर्म को कम करना है। लेकिन यहाँ साइंटिफिक प्रिंसिपल पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर सामान्य सी बात करेंगे। देखिए, किसी भी बच्ची का, किसी छात्रा का हाथ पकड़ा है, आप नजदीक से देखिएगा, हाँ ये थोड़ा देखिएगा, ये है, इसमें कुछ नहीं करना है। काउंट 1 पर हाथ को ऊपर से लेना है और अपनी ही चारों उंगलियों को पकड़ना है। छोड़ दीजिए हाथ को, छोड़ दीजिए एक बार। ये देखिए, आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए, आपके हाथ को ये पकड़ रखा है, आपको ये है, और जिस हाथ को पकड़ रखा है उसके अपोजिट हैंड को आपको क्या करना है, उससे हल्का सा रिस्ट के पास प्रेस करना है। देखिएगा, ये लीवरेज पर आधारित है पूरा, देखिएगा, ताकत से छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। बाई अप्लाइंग योर 5% स्ट्रेंथ, केवल आप 5% स्ट्रेंथ को लगाकर आप अपने हाथ को बड़े आसानी से छुड़वा सकते हैं। ये एक टेक्निक की बात थी। पहली टेक्निक, जब कोई भी प्रतियोगी या कोई आपका विरोधी आपके एक हाथ को दोनों हाथों से पकड़ता है, जकड़कर पकड़ता है, उस दशा में आप आसानी से अपने हाथ को कैसे छुड़वाएंगे। पहली टेक्निक के बाद दूसरी टेक्निक के लिए बढ़ेंगे, लेकिन लास्ट एक बार और इसको, आखिरी बार इसका और डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए। हाथ से पकड़ा, ताकत से पकड़ा, आपको कुछ नहीं करना है। 2 काउंट में आप सीख सकते हैं या किसी को सिखा सकते हैं। काउंट 1 पर अपने चारों उंगलियों को पकड़ना है, यू हैव टू होल्ड योर ओन फिंगर्स, और काउंट 2 पर हाथ को ऊपर लेना है और हल्का सा अपोनेंट की रिस्ट को प्रेस करना है। ये हो गया, ये सिंपल सा है, ताकत से छोड़ना नहीं है, पूरी ताकत, जितनी ताकत आप में। देखिए, मेरे मूवमेंट से आपको लग रहा होगा कि बाय अप्लाइंग माय मिनिमम स्ट्रेंथ आई एम अप्लाइंग द टेक्निक, और इसी को देख लीजिए, पूरी ताकत से बिना टेक्निक के नहीं छुड़वा पा रहा। ठीक, पहली टेक्निक के बाद दूसरी टेक्निक की बात करते हैं। अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं, यह दशा तब थी जब आपके अपोनेंट ने, प्रतिद्वंदी ने, आपके एक हाथ को दोनों हाथों से पकड़ा था। मान लीजिए कोई आपके एक हाथ को सेम साइड के हैंड को पकड़ता है, सेम साइड के हैंड को पकड़ता है, यदि ये छुड़वाना चाहेगा तो बड़ा मुश्किल से थोड़ा बहुत मुश्किल है छुड़वाना, खासकर फीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल है। यदि कोई दूसरा एक फुल ऑफ स्ट्रेंथ हो, ताकत, दूसरा मजबूत ताकतवर व्यक्ति हो, छुड़वाना बहुत मुश्किल है एक हाथ से भी। लेकिन इसमें भी हम आसानी से अपने हाथ को छुड़वा सकते हैं। कैसे, देखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा आगे आइए। ये मेरा हाथ सेम साइड का, एक हाथ से पकड़ा। पहली टेक्निक थी, पहली टेक्निक में प्रतिद्वंदी ने दोनों हाथों से एक हाथ को पकड़ा था। इसमें प्रतिद्वंदी ने सेम साइड के हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ा है। और कैसे छुड़वाना है, ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं करना, आपको 180 डिग्री टर्न कर लेना है, कुछ भी नहीं करना। आप अपने हाथ की ताकत, जैसे मैं छुड़वाऊंगा छोड़ेगा नहीं, बहुत ताकत लगा रहा हूं, नहीं छूट रहा हाथ, लेकिन सिंपल सा क्या, आपको अपने शरीर को 180 डिग्री टर्न करना है, और 180 डिग्री टर्न करेंगे तो बिना उसके ही अपने आप हाथ छूट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा हल्का पकड़िए, देखिए यहां से मैं 180 डिग्री, देखिएगा 180 डिग्री टर्न कर रहा हूं बिना ताकत के। ऐसा नहीं है कि मैं अब उस जो भी एक मेरे साथ जो विद्यार्थी, मैं उसको निर्देशित कर रहा हूं कि भाई आप पूरी ताकत लगाइए। अब आपके सामने निर्देशित कर रहा हूं, ताकत लगाइए, और देखिए आप मेरे मूवमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी कितनी ताकत लग रही है। कुछ भी ताकत नहीं लग रही। ठीक, अब थोड़ा हल्का पकड़ना है जिससे कि डेमोन्स्ट्रेट करना है। ये तो था सेम साइड के हाथ को कैसे छुड़वाना है। दूसरी टेक्निक, टेक्निक नंबर 3, अब इनको हम कंबाइंड कर लेते हैं। कंबाइंड कर रहे हैं कैसे कि छुड़वा तो लिया, लेकिन छुड़वाने के साथ अटैक कैसे करना है। अब ध्यान दीजिए, आपने हल्का सा 90 डिग्री टर्न किया, हाथ अपने आप यहां जाएगा, ध्यान दीजिए, और यहीं से ही नोज पर अटैक करना है सीधा सा। और बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन है नोज, हल्का सा भी हिट हुआ
तो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। अब तीसरी टेक्निक ने हमने कहा कि सेम साइड के हाथ को छुड़वाना। सेम साइड के हाथ को छुड़वाने के बाद अटैक कैसे करना है। 3 टेक्निक, अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं। पहली टेक्निक हमारी थी दोनों हाथों से कोई पकड़ता है तो कैसे छुड़वाना है। दूसरी टेक्निक थी सेम साइड के हैंड से पकड़ता है तो कैसे छुड़वाना है। तीसरी टेक्निक को कंबाइन कर दिया हमने कि छुड़वाना है हाथ और अटैक भी करना है। तो ये बात थी, ठीक। नेक्स्ट टेक्निक, टेक्निक नंबर 4, चौथी टेक्निक की बात करते हैं। चौथी टेक्निक में कई बार क्या होता है कि सेम साइड का हेड न पकड़ के उसी सेम हाथ न पकड़ के अपोजिट रिवर्स वे में हाथ पकड़ लेते हैं। अभी देखिए अगेन, पहला था दोनों हाथों से पकड़ा था, दूसरा था सेम साइड के हाथ से पकड़ा था, तीसरा यह भी तो हो सकता है कि किस अपोजिट हैंड से हाथ को पकड़ ले, ये भी तो हो सकता है। तो इस दशा में आप क्या करेंगे, इस दशा में आप क्या करेंगे। इस दशा में आपके पास 2 ऑप्शन है, हाथ छूटे, नहीं छूटे तो भी घबराने की बात नहीं है। अगर नहीं छूटा तो अटैक कैसे करें। इफ वी आर अनेबल टू रिलीज अवर हैंड, यदि हम अपने हाथ को छुड़वाने में असमर्थ है, देन वी हैव टू अटैक। सीधा सी बात है, अटैक करना है हमें, तो अटैक कैसे करना है ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आप थोड़ा आगे आ जाइए, देखिएगा ये बहुत ही डेंजरस टेक्निक है। इसमें डू और डाई वाली बात है, मतलब आपको नुकसान नहीं होगा, एक विरोधी पक्ष को बहुत नुकसान होगा इसमें। कैसे, ध्यान दीजिए। हमें इससे पहले टेक्निक में जो सेम साइड का हाथ था, देखिएगा उसमें हमने 80 डिग्री टर्न किया था। इसमें भी हमें 80 डिग्री टर्न करना है, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। उसमें जो हाथ पकड़ा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री टर्न करना है, लेकिन इसमें जो हाथ पकड़ा है उस साइड में ही, देखिए इसमें हमने टर्न किया था इस वे में, इसमें टर्न करना है इस वे में। लेकिन कैसे करना है ध्यान दीजिए, टर्न करना है और साथ साथ हाथ को उठा लेना है और यहां से, अब देखिएगा ये, अगर मैं ये यहां पर इसको हाथ को प्रेस कर दूं तो आप एल्बो की स्थिति समझ सकते हैं कि क्या होगी। तो अब तक की टेक्निक्स में ये थोड़ी खतरनाक है, इसमें एल्बो ज्वाइंट में फ्रैक्चर होना लगभग निश्चित सा है। तो फिर ध्यान रखिए, अगेन आई रिपीट, ऑल द टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स। किसी भी छात्रा को, किसी भी लड़की को दिमाग में यह वहम नहीं पालना है कि बिना ताकत के इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, यह जरूर है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप अच्छा कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रियंका, इज इट ठीक है ना, सब दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है सभी को? परफेक्ट सर, इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। चलेगा ना? यस सर, बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। आगे चलते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेशन है, सेल्फ डिफेंस टेक्निक। इससे ऑनलाइन सिखाना है तो थोड़ा सा एक उसका आपका दरिया है सिखाना, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। सर बहुत सही जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो लोग वीडियो और पीपीटीज यूज करते हैं, लेकिन इस तरह प्रैक्टिकली पहली बार हमें भी मौका मिला है। बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। तो और 2-4-5 टेक्निक्स की और बात करते हैं, ठीक? जी सर। अब 4-5 कम से कम 5 टेक्निक्स की और बात करेंगे। अभी तक तो बात थी हाथों तक सीमित थी। हमने टेक्निक की है जिससे कि आपको याद रहे कि आपका प्रतिद्वंदी दोनों हाथों को पकड़ना है तो क्या करना है। आपका प्रतिद्वंदी एक हाथ को पकड़ता सेम साइड को तो क्या करना है। तीसरी बात, फिर अटैक कैसे करना है। चौथी बात, आपका प्रतिद्वंदी आपके अपोजिट हैंड को पकड़ता है तो आपको क्या करना है, बात हुई। लेकिन हाथों तक तो सीमित रहेगा नहीं, हो सकता है कि वो कॉलर पकड़े। अगर कॉलर पकड़ता है तो क्या करता है, कॉलर पकड़ता है तो क्या करता है, ध्यान दीजिए, ध्यान देखिए। कॉलर कैसे पकड़ेगा, ये कॉलर पकड़ा, अब मेरे प्रतिद्वंदी ने मेरा कॉलर पकड़ा, ठीक है। कॉलर पकड़ा तो कैसे छुड़वाऊंगा, या तो कपड़े फट जाएंगे छुड़वाऊंगा तो। लेकिन यहां उद्देश्य 2 है। यहां पहला उद्देश्य यहां छुड़वाना नहीं है, दूसरे का इलाज करना है। वी हैव टू ट्रीट अनदर कॉन्टेस्टेंट। कैसे, देखिए बहुत ही
एक प्रभावशाली टेक्निक है। कैसे करेंगे? आपकी जो फिंगर टिप्स हैं, इन फिंगर टिप्स को अपोनेंट के फिस्ट में हल्का सा इंसर्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हाथ छोड़ दीजिए एक बार। आपको उसी कॉलर, मान लीजिए कॉलर पकड़ा हुआ है, तो हल्का सा यहां पर देखिएगा, हल्का सा, और दोनों हाथों से प्रेस कर लेना। अब आप तो क्योंकि ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपको इस दर्द का एहसास नहीं हो सकता, लेकिन देखिएगा, इसको पूछो कि क्या पेन हो, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो रहा है कि यहां पर ये लॉक लग रहा है, ये पोजीशन आ रही है। अगेन रिपीट, कैसे करना? यदि कॉलर पकड़ता है, अपनी फिंगर टिप्स को इंसर्ट करना है, दोनों हाथों से दबाना है, और यहां पर हाथ की ताकत नहीं लगानी है, अपनी ट्रंक की, पूरे धड़ की ताकत लगाकर हल्का सा ये मूव करना है। देखिए, सिंपल सी टेक्निक है। तो ये थी यदि कॉलर पकड़ता है तो क्या करना है। मान लीजिए इसी टेक्निक को और आगे, इसमें एक टेक्निक और ऐड करते हैं। इसमें टेक्निक ऐड क्या करते हैं? मान लीजिए कि उसने कॉलर पकड़ा और आप किसी तरह से चूक गए, और आप इस टेक्निक को नहीं लगा पाए, उसने छुड़वा लिया। कुछ नहीं, अगली टेक्निक में इसको एक्सटेंड कर दीजिए, और ध्यान दीजिए ये आ गया। अब ये मेरे कंट्रोल में 100%। जब तक मैं इस पोजीशन में रखूंगा, आप देखिएगा इसकी स्थिति आप देख सकते हो। हल्का सा भी यहां से आप हाथ से ताकत लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपके पूरे शरीर का आर्म पिट से प्रेस कर रहे हो आप, तो ये हुआ। ये कहानी थी। ठीक, एक और बहुत ही प्रभावशाली टेक्निक बताता हूं, बहुत ही प्रभावशाली टेक्निक। वो टेक्निक कैसे लगाई जाएगी? शुरू की टेक्निक पर चलते हैं। शुरू की टेक्निक क्या थी? यदि दोनों हाथों से पकड़ा तो दोनों, ध्यान दीजिए, ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक। आपको लगेगा कैसे संभव? दोनों हाथों से पकड़ा था, तो अभी तक ये बात हुई थी कि इस हाथ को आराम से छुड़वा लेना। भाई ताकत से पकड़ो, छोड़ो नहीं, छोड़ो, हल्का सा आराम से, बिना ताकत के मैं छुड़वा रहा हूं, और वैसे छुड़वा रहा हूं, नहीं छुड़ रहा, लेकिन यहां मैं बिना ताकत के छुड़वा पा रहा हूं हाथ को। लेकिन केवल हाथ को, अपने को छुड़वाना हमारा उद्देश्य नहीं है, दूसरे का इलाज करना भी हमारा उद्देश्य है। तो उस दशा में हाथ को छुड़वाया, या मान लीजिए, तो ये हाथ को छुड़वाना है तो हाथ को अंदर से इंसर्ट करना। अगर हाथ को नहीं छुड़वाना है, ध्यान दीजिए, तो अपने ही फिंगर टिप्स को पकड़ना है, हल्का सा पकड़ना है, और वही एक्शन करना है। वही एक्शन करने के बाद यहां पर प्लेस कर देना है, और देखिएगा, ये आपको लग रहा होगा, ये मैं एक उंगली लगा रहा हूं, ये मेरे कंट्रोल में। He is 100% अंडर माई कंट्रोल। जब तक मेरी ये पोजीशन रहेगी, मैं ताकत, नजदीक आइए, मैं देखिए एक उंगली से लगा रहा हूं केवल। आपको लग रहा होगा कि चमत्कार कैसे, लेकिन है, आप करके देखिए, केवल एक उंगली से, हल्का सा एक उंगली से इतना पेन है। अगर मैंने पूरा ये लगा दिया तो क्या हाल होगा? तो ये टेक्निक थी। ठीक, आगे चलते हैं। और बीच में भी यदि कोई पार्टिसिपेंट है, कोई छात्रा है, कोई विद्यार्थी है, अगर मेरी भाषावली में यदि डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ दोबारा से लिख रही हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब बात लड़कियों के साथ एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि बालों को पकड़ लिया, और बाल दो तरह से पकड़े जा सकते हैं। बाल सामने से पकड़े जा सकते हैं, या आप सामने जा रही हैं, पीछे से आपके बाल या चोटी पकड़ ली, उस दशा में क्या करेंगे? तो दोनों जगह की टेक्निक है। सामने से यदि पकड़ते हैं तो अलग तरीका है, पीछे से चोटी को पकड़ते हैं तो अलग तरीका है। शुरू करते हैं सामने वाले से। मान लीजिए कि सामने से मेरे बाल इन्होंने पकड़े, सामने से मेरे बाल उन्होंने पकड़े, ये मेरे बाल पकड़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना? कुछ नहीं करना, अपने हाथ को प्लेस करना है, प्रेस, इसमें सब कुछ है। प्रेस करने पर जितना ज्यादा प्रेस करेंगे उतना ही यूजफुल होगा। पकड़ा ताकत से, इसने बाल पकड़े, छोड़ नहीं रहा है, ये पकड़ा,
इससे प्रेस किया, ध्यान दीजिए अपने सर को नीचे झुकाकर, ध्यान दी, छोड़ दीजिए, क्या करना है, ये पोजीशन यहाँ लॉक लगाना है। लॉक हम अपने पूरे शरीर के वजन से लॉक लगा सकते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछ रही है कोई बच्ची, सर प्लीज शो प्रीवियस वंस अगेन। अभी बताते हैं बेटा उसको, पहले इसको देख लीजिए। तो ये है, प्रेस करना है और जितना नीचे झुकेंगे बल्कि अपनी गर्दन को, अपने सर को सरफेस तक ले जाएंगे। तो ये देखिए, यहां मैं अपने पूरे शरीर की ताकत लगा रहा हूं, ध्यान दीजिए, जितना बेस्ट पॉसिबल डेमोन्स्ट्रेट है। तो कुछ कुल मिलाकर ये अगर हल्का सा ढीला छोड़ दिया नहीं लगेगा, जितना ताकत से आप प्रेस करेंगे, प्रेस करके आप नीचे जाएंगे तो हाथ की ये पोजीशन होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, ये होगा। एक बच्ची ने पूछा प्रीवियस वन देख लीजिए। अब इस विद्यार्थी से, अब मास्क लगाया है तो इसके पेन के एक्सप्रेशन को आप देख नहीं पा रहे हैं, नहीं तो यू में जज एट योर ओन कि कितने पेनफुल ये टेक्निक्स हैं। आगे बात करते हैं। उस बच्ची ने पूछा था सर उसको दोबारा डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए। एक बच्ची ने पूछा कि सर दोबारा डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए। दोबारा डेमोन्स्ट्रेट करने में देखिए बेटा, हाथ छुड़वाना था तो दोनों हाथों के बीच से इंसर्ट करना था और ये आसानी से छुड़वा दिया। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ताकत लगा लो, 80% तो लगाओ, ये आसानी से छूट गया और वैसे नहीं छूटा, ठीक। लेकिन यहां पर हमें, हमारा उद्देश्य अपने हाथ को छुड़वाना नहीं है, यहां पर हमारा उद्देश्य उसको टेक्निक अप्लाई करके धराशायी करना। तो इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग हैंड फ्रॉम मिडिल साइड, वी हैव टू इंसर्ट आवर हैंड बाय द साइड। हमें साइड से हाथ को इंसर्ट करना है, अपनी ही उंगलियों को पकड़ना है, क्योंकि हमें इन उंगलियों को यहां प्लेस करना है, दूसरे हाथ की सहायता के बिना हम इसको प्लेस नहीं कर पाएंगे। यहां लिया हमने और यहां प्लेस कर दिया, ये पोजीशन आनी चाहिए, देख लीजिए ये पोजीशन आनी चाहिए, लेकिन ये अपने आप तो प्लेस कर नहीं सकते, दूसरे हाथ की सहायता लेनी पड़ेगी और अपने अपोनेंट के हाथ को हिलने नहीं देना, क्योंकि छोड़ दो, एक बार छोड़ देगा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो, उसको पता नहीं है कि कौन सी टेक्निक लग रही है। वो जितनी ताकत लगाएगा, वो जितना टाइटली होल्ड करेगा उतनी इफेक्टिव टेक्निक है, और ये बिल्कुल टेक्निक होगी। देखिए, क्योंकि उसकी ताकत भी लग रही, देखिएगा। लेकिन अब बच्चे अगर वो छोड़ दे, हाथ को छोड़ दीजिए, नहीं लगेगी, अब नहीं लगेगी, क्योंकि उसने छोड़ दिया। उसको क्या पता, यानी उसको ये नहीं पता है कि जितनी मैं ताकत लगा रहा हूं उतनी ही यह टेक्निक प्रभावशाली लग रही है, जितनी वो ताकत लगा रहे हैं उतनी ही टेक्निक प्रभावशाली लग रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे पिछली टेक्निक हमारी थी, उसमें क्या था, अगर बालों को, किसी छात्रा के बालों को सामने से पकड़ा तो क्या किया था। अब है बालों को पीछे से पकड़ा तो क्या किया, बालों को पीछे से पकड़ा तो क्या किया, और टाइटली होल्ड कर दिया। तो अभी तक ये जितनी भी टेक्निक हैं, ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉकिंग टेक्निक्स, और लगभग सब में या तो हम एल्बो लॉक लगा रहे हैं या हम रिस्ट लॉक लगा रहे हैं, यानी रिस्ट ज्वाइंट को लॉक कर रहे हैं, और ज्वाइंट को लॉक करते हैं बड़ा पेनफुल होता है, या हम एल्बो ज्वाइंट को लॉक कर रहे हैं। इसमें भी जो बाल पीछे से पकड़े थे, इसमें भी रिस्ट ज्वाइंट को लॉक करना है, जिससे वो दर्द से कह रहा है और तुरंत छोड़ दे। कैसे, थोड़ा सा मान लीजिए, आई होप कि विजिबल है, ये मेरे बाल पकड़ ली, ध्यान दीजिए, मुझे वैसे ही ये प्रेस करना है जैसे सामने से, ध्यान दीजिए सामने से था तो ये प्रेस किया था और ये पोर्शन लाए थे, और नीचे जितना जाएंगे उतना इसी प्रकार से प्रेस करना है, लेकिन 180 डिग्री टर्न करना है झुककर, और ये ध्यान दीजिए अब ये पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में। देखिए जितना ऊपर उठेंगे उतनी ही प्रभावशाली टेक्निक रहेगी, उतनी ही प्रभावशाली टेक्निक रहेगी। यहां तक की चर्चा में कोई शक सवाल किसी को हो तो बताइए। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि एक दिन में 5, 6, 7, 8 टेक्निक सीखना भी बहुत है। ये तो एक लंबी कहानी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बहुत अच्छा कर पाएंगे। केवल एक बार टेक्निक सीखने से, एक है आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रिपीटिशन,
जितना एक्सरसाइज मीन्स रिपीटिशन, जितना रिपीट करेंगे उतना ही परफेक्शन आएगा। अब हम ये अपेक्षा करें कि एक दिन हमने कुछ सीखा और हम पारंगत हो गए कि वी कैन अप्लाई वेरी इजीली, ये हम सबका भ्रम रहेगा। इसलिए एक टेक्निक के सीखने के किसी भी टेक्निक को सीखने के बाद 10, 20, 100, 200, 300 वो आपके एक ऐसा रिदम में आ जाएगी, वो टेक्निक तुरंत आप लगा सकते हैं। दो फायदे हैं, एक फायदा नहीं है कि इस टेक्निक को रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो टेक्निक तो सीखने को आएगी, लेकिन ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ टेक्निक को लगाते वक्त यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन, और जो बार बार रिपीट करेंगे दैट विल बिकम एक्सरसाइज, वो एक एक्सरसाइज भी होगी, दैट विल लीड टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, जिससे ताकत ही बढ़ेगी, एंडोरेंस से बढ़ेगी। एंडोरेंस बढ़ने से क्या होगा, वी कैन डिले द फटीग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, हम थकान को देर तक दूर रख पाएंगे। तो ये कहानियां थी यहां तक। अब है तो टेक्निक लंबी कहानी, ये मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह सर एक बच्ची ने चैट बॉक्स में अभी पीछे से हेयर को जो लॉक करने वाला है, मतलब पकड़ने का, उस टेक्निक के लिए फिर से रिक्वेस्ट किया। प्लीज सर, प्लीज लास्ट वाला रिपीट कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, अगर पीछे से किसी ने पकड़ा, एक हाथ को प्लेस करना है अपोनेंट के रिस्ट पर, ध्यान दीजिए, और फिर मैं नीज को फ्लेक्स करके थोड़ा बता रहा हूं जिससे कि पोजीशन क्लियर हो। हाथ को प्रेस करना है, दूसरे को प्रेस करना है, और हल्का सा गर्दन को नीचे ले जाते हुए 180 डिग्री टर्न करना है और ऊपर उठ जाना है, बस कुछ भी नहीं करना ऊपर। अगर ये छोड़ दिया तो कोई इफेक्टिव नहीं रही। ये जितना प्रेस करेंगे उठेंगे उतनी ही इफेक्टिव है, वो तुरंत छोड़ेगा और दूर हटेगा। जिस भी बच्चे ने पूछा था क्या इज देयर एनी नीड टू रिपीट, क्या इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता है? जिस बच्चे ने पूछा था। यस सर, हो गया कंफर्म। किसी को अगर कोई क्वेश्चन या कोई टेक्निक्स में डाउट है बेटा तो आप हैंड रेज कर दो और आपको हम अलाउ करेंगे, आप पूछ सकते हो सर से, बहुत कुछ मिल जाएगा आज आपको सीखने को, छोड़ना नहीं है सर को। बताइए कुछ पूछना हो तो। हैंड रेज कर दो या आप उसमें चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिखो, हम आपको अलाउ करते हैं। होस्ट एक बार सबको अनम्यूट कर दो आप तो। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। नो मैम। अब आज का फीडबैक बच्चों से ही हम सर को अभी फिलहाल देना चाहेंगे, क्योंकि आपको सिखाया गया है और आप पे कितना ये कारगर साबित हुआ है, तो आपको ही फीडबैक देना है। आप में से ही सर को जो भी फीडबैक आपको समझ में आया आप ही बताएंगे। अब कोई भी बच्चा आगे आना चाहता है बोलने के लिए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। क्लास चल रही है जब आप लोग जिनको बोलना है अपना माइक अनम्यूट करके बोलिएगा, क्योंकि बहुत से प्रियांशी सिंह। यस मैम, यस मैम। फीडबैक प्लीज। सर एक्चुअली हम लोग चाह रहे थे कि आप फिर से एक बार एक और सेशन करवाइए और हमें अच्छे से टेक्निक्स बताइए। बेटा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक सेशन इन्हीं का रिपीटिशन हो या नए सिरे से नई टेक्निक्स हो? नए सिरे से सर, ये बहुत हेल्पफुल था, बहुत अच्छे से समझ में आया सर। बेटा कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अब वो टेक्निक्स हैं, मैं कैमरे को कोशिश करूंगा सेट करके मैं मैडम प्रियंका को बताऊंगा कि पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि अभी तक तो वेस्ट से ऊपर की बात की, लेकिन अब पूरा विजन भी होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा, बात करता हूं मैं। आई विल इन्फॉर्म डॉक्टर प्रियंका। यस सर। सर 22 तक ये इवनिंग सेशंस अभी और हैं इन्हीं प्रैक्टिकल के, अगर आप किसी और दिन भी दे सकें हमारे बच्चों को कुछ न कुछ ज्ञान तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, तो 22 को भी मेरा सेशन एक कॉलेज में है, 23 को भी एक कॉलेज में सेशन है। अब वो देखना पड़ेगा कि टाइमिंग, हाँ टाइमिंग को देखना पड़ेगा। ठीक है सर। जया, डॉक्टर जया
Dr. Jaya, where are you? Someone call Jaya. I think she's not presented here. Hello. Yeah, Jaya. Dr. Jaya, speak. Hello. Yeah, Jaya. हेलो, हाँ जया, बोलिए आप. आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Thank you so much, sir, for the very stimulating lecture with practical demonstration. Nothing feels better than knowing you can take care of yourself mentally and physically. So I am sure after this lecture, we all are being able to protect ourselves in all difficult situations. The lecture is a confidence booster and reassurance for all of us. Thank you so much, sir. सर, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम अदर गर्ल कि सर क्या हमें कुछ नेक की भी टेक्निक, नेक होल्ड की टेक्निक और इस तरह की टेक्निक्स देखने को मिलेंगी? तो प्लीज एक, अगर आपका टाइम निकल पाएगा तो एक दिन. मैडम, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. मैं देख कर बताऊंगा आपको. कल सुबह तक बता दूंगा कि ये सेशन की टाइमिंग्स हैं, खाली हैं. तो ठीक. ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सर हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है कि आपसे हमें सीखने को मिल रहा है. मेरी आंख खुद नहीं झपकी है सर, मैं कंटिन्यू देख रही थी टेक्निक्स. आज मुझे फिर से सीखने को मिला बहुत कुछ. सीखा तो बहुत कुछ है और स्टिल आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन आज फिर से वो एक स्टूडेंट वाली फीलिंग आई और बहुत कुछ सीखने को मिला. यस सर, बहुत ही अच्छा लगा. बहुत अच्छे टेक्निक्स, इजी टेक्निक्स, एकदम पता नहीं लग रहा था, एकदम इजीली हो जा रहा था. भाई बहन के साथ ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू मैडम, थैंक यू.